Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are discuss about physics chapter number 1 with rapid revision. Okay, so without wasting our time, let's start the video. So firstly, we know what is light. What is light? The physics chapter number 1 is light. Okay, so we know na what is light. So what is the actual definition of light? Light is a form of energy. Light is a form of energy which help us to see the object. देखो लाइट का डिफिनेशन क्या होता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. मीन्स light is a energy, okay, which help us to see the object. Yeah, in your mind one doubt are come, brother, without light we can not see anything. No brother, okay, I am imaginary you, okay, so I am close the light, okay, yeah, so are you comfortable to see anything? No na, that I am on the torch. Now you are see anything. So in that definition is come which help us to see the object. Without light we cannot see anything. Okay, yes. So now we know that some property of light, such as in our mind, in our body, such as some property are come, that are we are talking with some other. जैसे कि हिंदी बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर कुछ प्रॉपर्टी होता है. जैसे हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं. सो दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. ओके, सो फर्स्टली लेट्स प्रिपेयर. सो फर्स्ट इज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं लाइट इज ट्रेवल इन straight line. Okay, light is also travel in a straight line. Okay, that's this kind, not light travel like this. Okay, Yes. one, you know, light is also travel in a straight line. Do not light travel on that. Okay, first property is you're done. Second property is that second property is say that light travel in vacuum. Means if you say that if light is travel, they do not have any medium required, such as air, water, glass. Okay, so second property is that light do not need any vacuum. Yeah, sorry, light do not need any medium. Light do not need any medium. Okay, a third property is say that the speed of light is 3 into 10 की power 8 meter per second. So here we write. Okay, firstly I am erase this. So this is my magic eraser board. You are seeing? Yes, I am erase this. Okay, yeah. The third property of light is say that the speed of light is 3 into 10 की power 8 meter per second. So 3 into 10 की power 8 meter per second. This is actual speed of light. Okay, fourth property of light is say that the particle of light that is called photons. You know that the particle of light that is called photons. This is very important. Please learn. I don't know how. Please you prepare this. The particle of light that is called photons. Okay. Yes. If many, such as देखो, this is photons, one photons. Okay. If many photons are like this, so these are form light ray. What is form? This is form light ray. Light ray. We can say that we can say that if many photons are in line by line,
that is called light ray. Okay, yes, okay, sit, take your seat. एंड थर्ड प्रॉपर्टी मतलब सुको, यहाँ पे आपका तीन प्रॉपर्टी मैं बता देना चाहता हूँ। जो लाइट का प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। अब बहुत सारे फोटॉन्स अगर एक ही रास्ते पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लाइट रे। अगर बहुत सारे लाइट रे अगर ऐसे से आ गए ऐसे से आ गए तो हम लोग उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ओके, यस, here are your 3 4 5 6 7. So here are your 7 property are there, that is light travel in a straight line, light do not need any medium, the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, the particle of light that is called photons, the if many photons are like this so that is called light ray, if many light ray that form that is called beam of light. Okay, you understand? Yes, I am understand. So your next topic is reflection of light. You know what is reflection of light? No? So here I am explain you what is the reflection of light. So firstly I am erase this because if I am not erase this you are not see clearly. So firstly I am erase this. So your board now is very clean. You can see this. So firstly let's start, मतलब अपने टॉपिक पे आते हैं। वी आर टॉपिक इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Okay, we are topic is that reflection of light. So we know now what is reflection of light. So I am draw a one diagram so you can listen this or understand by this diagram. Okay, so imagine this is a plane surface. Plane surface means where you can see your, if you are wake up in morning then you are see ऐसे ऐसे ना बाहर झाड़ते हो ना शीशे के सामने देख के, सो दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ओके, सो इमेजिन दैट इज अ प्लेन मिरर, if light rays are come that type, so light reflect that type, so light is inter and light is end, so that is called reflection of light. This is very easy, anybody not explain you this type. So actual meaning of reflection of light, the bouncing back of light, that is called reflection of light. Bouncing back of light means this is a surface, yeah, your light is come that type, your light is reflect that type, that is called reflection of light. Maybe you understand, yeah, yeah. So here are some property of reflection of light. Property means we are property is wake up morning. Okay, so there are many properties of reflection of light. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एंगल, देखो ये जो लाइट आता है, जिससे लाइट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जिसपे जो दोनों के बीच में होता है जिसे हम लोग नॉर्मल रे बोलते हैं। व्हाई वी आर से दैट इज नॉर्मल, बिकॉज दे आर डिवाइड इनटू सेम सेम। ओके, if this angle is 30, so also this is angle is 30 because they are normal ray are divided into both. Okay, you understand? Yes, I understand. So first property is say that reflection of light, angle I and angle R and a normal, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। प्लेन मींस दिस इज अ वन सरफेस, सो दीज आर लाई ऑन द वन सरफेस। सो 1 2 3 मतलब एंगल आई एंड एंगल आर एंड एन आर लाई ऑन सेम प्लेन। You understand? Yes, I am understand. The second property of light is say that wait. The second property of light is say that angle I is equal to angle R. I am explain you some before later because this angle is 30, so this is also 30. Why this is 30? Because they are incident, they are reflected. If they are same, so this is also same. Okay, you understand? Yes, I understand. So our next topic is reflection of, मतलब this is a topic. So these are two type.
Okay, this is two types. So I am right here types of light. So this is the one topic. So I am right here types. So these are two types of reflection of light. Okay, one is regular and second is irregular. Okay, so here you can see this is a name. You imaginary या देखो रेगुलर मतलब नाम ऐसा लग रहा है रेगुलर जो रोज जाता है. रेगुलर मतलब आप लाइट में समझो कि जो एकदम प्लेन सरफेस होता है जैसे आपका शीशा हो गया. दिस इज प्लेन. ओके, so this is plane means here if light is come, so directly this is reflection. Okay, that is not, I said this is not type, this is one, this is two. Okay, so this is plane mirror, they are also move ऐसे से वैसे. Okay, अब the second type is that irregular. नाम में ऐसा लग रहा है irregular मतलब इससे तो अलग ही होगा. तो देखो अगर कभी कभी प्लेन ऐसा होता है कि मतलब सरफेस ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे होता है. ओके, तो इसमें क्या होता है, मान लो अगर आपका लाइट ऐसा आया तो एक ऐसे जाएगा. ओके, अगर एक लाइट ऐसा है तो ऐसे चल जाएगा. तो इसमें दे आर डिफरेंट एंगल रिफ्लेक्टेड. ओके, यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम आल्सो अंडरस्टैंड. So here you can understand one topic. This is very important, so I am explain you. Okay, so I am see this firstly. Okay, here is one point is say that this is a surface. Okay, here is one fact: silver surface is the best reflecting surface, such as we are seeing our face on the mirror. So that is a made up of glass fibers and some air. So the all so one is that is called सिल्वर. जो सिल्वर का होता है, सिल्वर का ग्लास होता है, वो बहुत अच्छा रहता है रिफ्लेक्टिंग के लिए. क्यों अच्छा रहता है भाई? वो इतना अट्रैक्टिव रखता है कि उसमें लाइट जैसे ही आता है सीधा पास हो जाता है. ओके, अंडरस्टैंड? यस, आई एम आल्सो अंडरस्टैंड. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट. So what is object? You don't know, na? Yes, I am explain you what is object. So firstly, I am write the object. Firstly, I am erase this. So this is my magic eraser. Okay. So I am erase this. Tap to tap and erase that is. Okay. Yes, erase. Ab our topic is that object. What is object? You don't know, na? Yes, I explain you what is object. Object means anything that reflect light, that is called object. Means you don't understand? Yes, I am explaining. This suppose that this is a marker. This is also a marker. If light is come on that surface, that is reflect. Okay, सच एज हेयर इज वन एंड टू लाइट. तो अगर दोनों का लाइट यहाँ पे अगर पड़ रहा है तो दोनों रिफ्लेक्ट हो रहा है. जैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. तो लाइट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन ही कहता है कोई भी चीज अगर लाइट को डिस्टर्ब सॉरी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे मान लो मैंने अपना हाथ रखा तो इस पे लाइट पड़ा होगा तभी तो रिफ्लेक्ट किया, तभी तो हम लोग देख पा रहे हैं. इसको ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ओके, अब ऑब्जेक्ट आर टू टाइप. ओके, ऑब्जेक्ट आर टू टाइप. तो यहाँ पे टाइप, तो यहाँ पे एक टाइप होता है लुमिनस, दूसरा होता है नॉन लुमिनस. So what is luminous object? What is luminous object? Luminous object is that which reflected light. Sorry. Firstly, I want to drink one glass of water, because when I drink one glass of water, then my mind is fresh very. So here is water. I am drinking. You are also drink water.
Yeah, I am now I am drinking a water. So start the class. Okay. So our topic is that what is the luminous object. So here we can explain you what is luminous object. Anything that reflect anything. अरे यार I am forget what I am saying object which have. देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके पास खुद का लाइट रहता है। जैसे आपका सूरज भगवान हो गए, सन हो गया, वह खुद का लाइट उसके पास होता है। और जैसे आपका स्टार हो गया, स्टार के पास खुद का लाइट रहता है। और जैसे आपके घर का बल्ब हो गया, बल्ब भी खुद से बढ़ता है, मतलब भले हम लोग चालू करते हैं बट वो एक प्रकार से खुद से बढ़ रहा है। चालू कर रहे हैं तभी तो बढ़ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो खुद से लाइट बढ़ता है। जैसे आपका स्टार हो गया, सन हो गया, लाइट हो गया। हाँ, अब बात करते हैं नॉन लुमिनस किसे कहते हैं। नॉन लुमिनस उसे कहते हैं जो लाइट खुद से नहीं बाढ़ता है, मतलब खुद से नहीं प्रकट होता है। और डिफिनेशन में लिखेंगे दोज ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट लाइट, दैट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल है मून मीन्स चांद। आप समझते होंगे अरे यार जैसे सूरज भगवान लाइट दे रहे हैं तो उसे चंद्रमा बाबा भी देते हैं लाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? देखो ऐसा इसलिए नहीं है ना। देखो हमारे ये जो पर्यावरण है, ब्रह्मांड है, ये एक पृथ्वी है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे चंदा मामा है ना, और यहाँ पे हमारा सूरज भगवान है ना। तो ये खुद से लाइट प्रकट करता है। और ये जब इस पे लाइट, जैसे ये तो हमेशा लाइट अपना देता रहता है, जब इस पे लाइट पड़ता है तब ये लाइट बॉर्न करता है, बढ़ता है। अब ये चांद को देखेंगे ना, तो चांद के पास खुद का लाइट नहीं है। अगर चांद के पास खुद का लाइट रहता है ना तो कभी कभी रहता है पूर्णिमा रहता है, अमावस्या की रात रहता है। अमावस्या की रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं ना। चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि जो सूरज का प्रकाश है वहां पे नहीं पहुंच पाता। अगर मान लो चंद्रमा अपने लाइट खुद प्रकट करते ना, समझ लो अगर चंद्रमा खुद अपना लाइट प्रकट करते तो हम लोगों को तो दिखता ना, चलो लाइट कम बेसी नहीं होता ना। बट नहीं, जो चंद्रमा है इससे जो सन भगवान से जितना उसे लाइट मिलता है बस वही यूज करता है। तो हमारा जो मून है ये नॉन लुमिनस है। हमारे बुक्स भी नॉन लुमिनस है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये ऑटोमेटिक हम लोग मतलब इसमें बुक से कोई लाइट बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है ना, तो ये नॉन लुमिनस हो गया। ठीक है, समझ गया? हाँ समझ गया। एक चीज यहाँ फैक्ट जान लो, हम लोग जो देखते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है। ओके, लुमिनस को भी देख सकते हैं बट नॉन लुमिनस को कंफर्म देख सकते हैं। ओके, अब आवर सेकंड टॉपिक इज दैट व्हाट इज मिरर। So where is my magic eraser? So I erase this board. So here is my magic eraser. This is very good eraser. Oh my god, your 18-minute video is completed. So we can write this mirror. Our next topic is what is mirror. Okay, so learn with जल्दी मैं जल्दी इतना पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। तो मिरर क्या होता है? देखो मिरर का डिफिनेशन ये कहता है कि जो मिरर होता है, मिरर इज अ मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड फाइबर। जो मिरर रहता है ये ग्लास से बनता है। जैसे कि आपका मोबाइल का स्क्रीन ये ग्लास से बना होगा, या प्लास्टिक से बना होगा, या फाइबर से बना होगा। ओके, तो मिरर का डिफिनेशन पहले क्या कहता है? मिरर इज अ मेड अप ऑफ ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक। ओके, विच वन साइड इज polished and one side is reflecting, such as this is mirror, here is a polished means this is a paint. Okay, your mirror का definition is say that one side polished रहता है, इस वाला साइड जो ये polished है, और ये इधर का साइड reflecting surface कहलाता है। ठीक है, मिरर का definition बता दिया यार। mirror is made up of glass, fibers और anyone's, or there are one side are reflecting surface and that is one side are polished. Okay, you want to understand? Yes, I am understand. So types of mirror.
Types of mirror. Only wait 10 minutes. 10 minutes. Okay. So we are discussed what is mirror. So wait only for 1 minute. So sorry. In which topic we are come? Mirror ne? Yes, types of mirror. So there are two types of mirror. Okay, there are two types of mirror. One is plane mirror and second is spherical mirror. Okay, here are two name as suggestion. So I am discuss this is very simply way and you can understand this is also. So okay, so you know what is the definition of mirror. Okay, so that same to same आंसर मिरर का सेम टू सेम आंसर प्लेन मिरर पे पेस्ट कर दो आंसर आ जाएगा. क्यों? देखो प्लेन मिरर पे रख दो. प्लेन मिरर इज मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास एंड प्लास्टिक. ओके, and this is one side reflecting surface and one side polished. Okay, your plane mirror is confirmed. Yes, but हाँ वन चीज प्लेन मिरर में नोट कर लो. नोट मतलब याद कर लो. प्लेन मिरर में क्या होता है? देखो प्लेन मिरर में हमेशा आपका लेटरल इन्वर्टेड होता है. मैंने आपको बहुत बार समझाया लेटरल इन्वर्टेड किसे कहते हैं. सोचो कि पहले मिरर में जान लो. सब लोग कहते हैं ना कि अगर आप ये वाला हाथ उठाएंगे अपना राइट वाला हैंड तो आपको मिरर में दिखेगा लेफ्ट वाला हैंड. लेकिन कैसे दिखेगा ये तो कोई नहीं बताता ना. चलो मैं बताता हूँ. देखो सोचो कि आपके सामने आपकी मम्मी खड़ी है, ऐसे खड़ी है ना. ओके, अब अपने मम्मी को मम्मी अपना राइट वाला हैंड उठाओ तो आपके हिसाब से राइट वाला हैंड ये वाला होगा. बट यही मम्मी की तरफ से अपना राइट वाला हैंड ये हो जाएगा. देखो ये वाला किया, मम्मी मोड़ी तो ऐसे हो जाएगा. आप कह रहे हो तो ऐसे, मम्मी कही तो ऐसे. जैसे आपका तो राइट वाला हैंड उठ रहा है बट आपके मम्मी का जो है लेफ्ट वाला हैंड उठ रहा है. इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड. So this is the one point of lateral plane mirror. Wait, anybody has come? Okay, wait, guys. Sorry, guys, because I'm so sorry because we are at now I am village. So here is my mother, here is my sister, here is my everyone. So come right now. So I am disturbed for you. So चलो start करते वीडियो को. So प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी यार, जैसे मैंने बताया कि प्लेन मिरर का एक होता है वो लेटरल इन्वर्टेड होता है. क्यों लेटरल इन्वर्टेड क्यों रहता है? क्योंकि अगर अपना राइट वाला हैंड उठा रहा तो उसका लेफ्ट वाला उठेगा. मैंने ये वाला एग्जांपल देखिए बताया ना, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड. और एक और पॉइंट है इसका नोट करने के. प्लेन जो मिरर होता है ये सोचो मिरर है ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो मिरर के भी अंदर अभी यहाँ पे बनेंगे. ठीक है, इसको कहते हैं सेम साइज इक्वल टू द मिरर. ओके, समझ गया? हाँ समझ गया. अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं. देखो स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन तो ऐसा है कि आपको याद नहीं होगा तो आपको याद करने का जरूरत भी नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ. दिस इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. दिस इज अ पार्ट ऑफ, मैंने क्या लिखा है आपको समझ नहीं आएगा बट मेरे को समझ आएगा. स्फेरिकल मिरर दिस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर. होलो स्फेरिकल HOLL होलो स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर. ओके, होलो स्फेरिकल मतलब ये एक ऐसा स्फेरिकल होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल. ओके, या अब इसके अंदर ये दो प्रकार का होता है स्फेरिकल मिरर. एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव. तो दोनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो पहले देखो, अगर हम लोग ये वाला बस ओनली ये वाला पॉइंट लेते हैं और ये वाला पॉइंट ना, और दोनों को मैं अलग से निकालता हूँ तो हमारा एक खूब बन रहा है ऐसे और एक खूब बन रहा है ऐसे. अब इसको थोड़ा सा दूर लेके आते हैं, थोड़ा इसको दूर लेके आते हैं. ओके, सो वेट एवरीवन. तो मैंने ये दो ठो बाहर निकाला. अब इसको थोड़ा सा और बड़े में करते हैं. बड़े में एक हमारा बन रहा है ऐसा और एक बन रहा है ऐसा. ओके, अब हम लोग यही ये डिस्कस करेंगे. देखो एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव ना. सोचो कि ये है, ये हो गया कन्वेक्स और हो गया कनकेव.
भाई दोनों तो सेम लग रहा है। हाँ चलो बताता हूँ, देखो जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर में जो अंदर वाला साइड रहता है वो पॉलिश्ड रहता है। वेट, यस, यू गिव मी राइट नाउ, क्लोज द डोर। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, और जो कनकेव मिरर में रहता है, कनकेव मिरर में रहता है वो बाहर साइड पॉलिश रहता है। देखो सोचो क्या, अपने हाथ से प्रैक्टिकल करो, अपने हाथ को ऐसे करो। ओके, अगर इसके अंदर लाइट, अगर कुछ बॉल अगर फेंकेंगे तो बॉल अंदर का अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाएगा और ऐसे ही इसके ही अंदर रह जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं, देखो ये वाला हमारा हाथ ऐसा है, ये ऐसा आपको नहीं लग रहा है सेम टू सेम? तो मतलब इसके अंदर जो लाइट रहता है ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये बाहर साइड पेंट रहेगा तभी तो अंदर रिफ्लेक्शन होगा ना, ऐसा है। अब ये इसको देखो, ये हमारा अंदर वाला साइड पेंट है, अंदर वाला साइड मतलब ये बाहर वाला एकदम पेंट है, अंदर वाला एकदम पेंट है, तो हमेशा लाइट ऐसे रहेगा। तो अगर सोचो यहाँ पे अगर कोई बॉल फेंकेगा तो बॉल बाहर का बाहर ही रहेगा ना, उसको बोलते हैं कन्वेक्स। समझ आ गया? अरे यार इतना इजी डिफरेंस कोई नहीं बताता। चलो अब इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। देखो, कनकेव कनकेव मिरर में हमेशा रहता है लाइट अंदर ही रिफ्लेक्शन होता है, और कन्वेक्स में हमेशा बाहर होता है। ठीक है, अब चलो दोनों के बारे में और अच्छे से बात करते हैं। सो फर्स्टली वी कैन ओपन आवर कॉपी नोटबुक। कन्वेक्स कनकेव हो गया, यस। स्फेरिकल मिरर, यस। इमेज, अब यहाँ पे हमारे ये इतना बना दिया ना। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इतना तो समझ गए होंगे ना कनकेव किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म ऑन कनकेव मिरर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। Okay, so without learn this, we can some topic are note. Okay, first is focus, second is pole, third is principal axis, and fourth is you are see properly, yes। देखो पहले फोकस पोल की, और फोकस किसे कहते हैं ना। सोचो कि ये हमारे कनकेव मिरर है, यहाँ से हम लाइट लेके जाते हैं ना। देखो ये आपको पता है, ये हमारे कोई स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना, पता है ना। इसको ये वाला जो आपको दिख रहा है बाहर साइड पेंट रहता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ओके, अपर्चर को जो बीच में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस को सॉरी, जो अपर्चर के बीच में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। शॉर्टकट से हम लोग इसे लिखते हैं पी। ओके, हाँ। अभी इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि एक स्फेरिकल का पार्ट था पहले, स्फेरिकल का पार्ट ऐसा हो जाएगा, तो स्फेरिकल का जो सेंटर रहता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सी। अब बात करते हैं फोकस किसे कहते हैं। सी और पी के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं एफ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। जिस लाइन पे सब कुछ रहता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गया? हाँ समझ गया। ये वाला जो टॉपिक था भाई, डिफिनेशन किसी को याद नहीं हो तो मैंने आपको तुरंत याद करवा दिया ना, बहुत जीनियस हो आप लोग। अब चलो हम लोग बात करते हैं, हमारा कुछ इमेज जब बनता है तो उसके लिए कुछ मेन टर्म। तो सब पहला रूल कैसा है, अगर लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस से होके जाती है। अगर लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है, और दूसरा नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से जाती है तो पैरेलल जाएगा। कोई चीज सीधा जा रहा है तो वो उल्टा जाएगा, उल्टा जा रहा है तो सीधा जाएगा ना। अगर लाइट पैरेलल गई तो, लाइट पैरेलल मतलब ये होता है पैरेलल, इसको बोलते हैं। तो फोकस से जाएगी, हमारा फोकस पॉइंट है तो लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी। अगर लाइट फोकस से गई, ये लाइट हमारे फोकस से गई तो पैरेलल जाएगा। समझ गया? हाँ समझ गया। ओके, लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाएगा, फोकस से गई तो पैरेलल जाएगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट रहता है, अगर लाइट सी से जाता है तो हमेशा सी ए पे जाएगा। मान लो लाइट सी से अगर ऐसे गया, हमारा सी से हमेशा ऐसे ही आ जाएगा।
समझ गए, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट कहता है अगर लाइट पोल से गया तो पोल से सीधा एंगल पे इधर आ जाएगा। मान लो लाइट हमारे पोल पे गया तो पोल से सीधा एंगल आ गया। समझ गया? हाँ भाई समझ गया। अब यही हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। तो हाँ, एक सवाल है कन के ऊपर है ना, तो पहले से इरेज करता हूँ। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है अगर लाइट इन्फिनिटी में रहे तो क्या होगा। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। तो मैंने बोला था एक तो आपको एक बार पैरेलल ले जाकर जाना पड़ेगा, पैरेलल से जाएगा तो फोकस से जाएगा, फिर एक बार इसको फोकस से लेके जाओ, तो फिर फोकस से लेके जाओ, फिर यहाँ पे ऐसे लेके जाओ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाओ, यहाँ पे हमें बनना है। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ भी मिलता है उसको ही बोलते हैं एट सी भी मिल रहा है ना, हम लोग कह सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट सी भी बनेगा। या दैट इज वेरी इजी। अगर बोल दिया जाए कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पे रखो, बियॉन्ड सी मतलब हल्का सी से पीछे रखो, सी से रखो तो पैरेलल लेके जाओ, फोकस से लेके ऐसे जाओ, और वो फोकस से लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ये भी आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सोच लो कि ये भी आपका ऑब्जेक्ट सी पे बन रहा है। समझ गया ना? तो यही इमेज बनाना मैंने सीख लिया। अगर लाइट को मैंने अगर लाइट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर से होकर जाकर पैरेलल पे फोकस से जाएगा, फोकस से लेके जाओगे तो इससे जाएगा, हमारा लाइट जो बन रहा है तब ये बहुत पास बन रहा है। ऐसे हम लोग सीखते हैं ना, जहाँ भी मान लो दोनों ये वाला लाइट और ये वाला लाइट जहाँ मिल रहा है तो उसको बोलते हैं अच्छा ये इसके बीच में है, तो हाँ ऑब्जेक्ट हमारे सी एंड एफ के बीच में बन रहा है। समझ गया? हाँ समझ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी को आता ही नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बता दिया रूल कैसे इमेज बनता है, ये भी बता दिया भाई, बता दिया। हाँ, एक टॉपिक हमारा रह गया है जिसे हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। चलो उसको जल्दी याद कर लेते हैं। सॉरी यार, वीडियो थोड़ा लंबा बनाना पड़ रहा है। पानी रखे उन्हें पीने के लिए, पानी पियो ऐसे करको। पानी पीते रहो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पहले को हम डायग्राम बनाते हैं। बस यही हमारा टॉपिक है। देखो आपने बचपन में तो ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये बीच वाला है ना, इधर हमेशा प्लस, इधर हमेशा प्लस, नीचे हमेशा माइनस, इधर भी हमेशा माइनस। ऐसे इसको यहाँ पे भी रखो ना, इसको यहाँ पे, तो सोचो इधर का साइड हमेशा प्लस रहेगा और नीचे वाला माइनस रहेगा, तो ये माइनस है और ऊपर वाला प्लस प्लस, तो ये भी यहाँ पे रख के समझो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। समझ गया? हाँ जी, साइन कन्वेंशन समझ गया। आज दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मेरे को लग रहा है आपको सब टॉपिक समझ आ रहा है एकदम अच्छे से। हाँ यार समझ पाइएगा। अब एक है मिरर फार्मूला। अगर आप मैं कल लेक्चर लेके आने वाला हूँ भाई, वो लेक्चर कभी देखना एकदम अच्छे से, उसमें 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक हमारा है मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला याद कर लो। मिरर फार्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला है, याद कर लो। 2 मिनट और रुक जाए भाई, आपका क्लास आज यहीं पे खत्म करता हूँ। अरे बाप रे बाप। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टाइम करिएगा मैंने। अब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है अगर ये लाइट एक मीडियम है ना, मीडियम मतलब जिसके थ्रू लाइट जाता है उसको मीडियम कहते हैं। जैसे वाटर के थ्रू लाइट जाता है उसे मीडियम, एयर के थ्रू लाइट जाता है उसे मीडियम कहते हैं ना।
तो एक हो एयर, एक हो वाटर, दोनों अलग अलग मीडियम है ना। अगर लाइट को हम लोग यहाँ से पास करते हैं, लाइट को हमेशा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन लाइट हल्का सा ऐसा मुड़ के गया, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए लेकिन नहीं गया, हल्का सा मुड़ के गया, इसको ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट हल्का सा बेंड हो गया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्यों बेंड हो गया? क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, रेयर मतलब जो जो बहुत हल्का रहता है, जैसे कि एयर, अरे हवा, अरे पानी की अपेक्षा में हवा में लाइट बहुत तेज जाता है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो हवा है वह रेयर हो गया, क्योंकि इसमें लाइट बहुत तेज जा रहा है। डेंसर मतलब पानी, पानी में क्योंकि लाइट थोड़ा कम जाता है, उसको बोलते हैं डेंसर। ठीक, अब रेडर से डेंसर में लाइट जाता है तो हल्का से बेंड होता है, समझ गया? हाँ समझ गया। अब चलो अब अपने मन से लास्ट टॉपिक बताता हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो बहुत अच्छा है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। लेंसेज। सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मैं बोल रहा हूँ आप लिखना, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देख लिए, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस। सोचो कि एक वो सरफेस से घिरा हुआ है और ये भी एक सरफेस से घिरा हुआ है, तो ये दो सरफेस से घिरा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं ये जो लेंस है दो सरफेस से घिरा हुआ है। और सोचो ये भी एक दो सरफेस से घिरा हुआ है, एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया, सब सरफेस हो गया, समझ गया? हाँ समझ गया, ठीक है। तो ये वाला जो हमेशा ऐसा मिरर रहता है, ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, और जो ऐसा रहता है ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव, कनकेव लेंस। ओके समझ गया? हाँ समझ गया। अब जो मान लो ये हमारा, अच्छे से बता देता हूँ आपको, जो दोनों का सेंटर रहता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, इसको भी बोलते हैं ऑप्टिकल, दोनों के सेंटर का हम बोलते हैं ऑप्टिकल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इमेज की कैसे बनता है ना, इसे वो बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं और इसको 2F1 बोलते हैं ना। मैंने आपको बताया, अगर मान लो मैंने इन्फिनिटी पे लाइट को रखा ना, इन्फिनिटी, और इधर भी F2 बन रहा है, उधर 2F2 बन रहा है ना। मैंने बताया एक बार लाइट को जाता है फोकस से ना, लाइट पैरेलल जाता है तो फोकस से मीट करेगा, तो लाइट यहाँ पैरेलल गया तो फोकस पे गया ना। और यहाँ पे अगर कनकेव लेंस आ गया, कनकेव, तो ऐसे एक बार जाता है, ये F1 है, F2, एक बार जाता है लाइट हमेशा यहाँ पे ना, इसमें जो कन्वेक्स मेरा हमारा हमेशा लाइट पास आता है, मतलब एक जगह रोकने का प्रयास करता है, मतलब उसे चाहे जैसे लाइट गया तो एक जगह आएगा। और ये आपका कनकेव में हमेशा लाइट आपका दूर भागने का प्रयास करता है, दूर जब भागेगा तो एक बार पॉइंट हमारा जाके F1 पे, ये सोचो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। हम जब भी इसके लाइट अगर दूर से आया तो ये एक बार हमेशा लाइट को दूर भेज देगा, अगर इधर से भी लाइट आया लाइट को दूर भेज देगा, बट एक पॉइंट हमारे जाके यहाँ पे मिलाता है जो F1 पे बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस लाइट को खींचता है और कनकेव लेंस लाइट को दूर दूर भेजता है। ओके, और देख लो कोई टॉपिक है ये बताया ना, तो फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। ये हमारा कोई लेंस हो गया, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल से ओ बोलते हैं, पॉइंट को ओ, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइट इसे पैरेलल गया तो एक बार फोकस से जाएगा। ये है कि कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस हमेशा आपके लाइट को एकदम एक पास खींचता है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? कन्वेक्स लेंस सोचोगे ऑप्टिकल, ये आपके लाइट को हमेशा दूर भेजता है,
दूर भेजता है तो एक बार पॉइंट F1 पे जाके मीट करता है, उसको बोलते हैं अगर हमारा कन्वेक्स। कनकेव लेंस में हमेशा आपके लाइट को पास करता है और कन्वेक्स लेंस में आपको लाइट को हमेशा दूर भेजता है। ठीक है, समझ गया। हाँ, अब यहीं पे एक टॉपिक बता के क्लास को एंड कर रहे हैं। एक टॉपिक है, जैसे मैंने मिरर फार्मूला की बात किया था। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यही लेंस का फार्मूला सेम रहता है 1/f इक्वल टू 1/v। यहाँ पे बस माइनस का हो जाता है -1/u, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस 1/v, यहाँ पे -1/v, बाकी सब सेम रहता है। ओके, ये हमारा मिरर का हो गया, ये हमारा लेंस का हो गया। और भाई और कुछ बाकी के टॉपिक के बताना बाकी तो बता देना चाहता हूँ। अब एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, मैं आपको बोल के समझाना चाहता हूँ। पावर ऑफ लेंस उसको कहते हैं जब लाइट हमारा ऐसे गया, ऐसे मुड़ा नहीं, हल्का सीधा चल गया, तो पावर ऑफ लेंस उसे कहते हैं लाइट को कितना मोड़ सकता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर का फार्मूला, पावर का ऐसा यूनिट होता है डाइप्टर। डाइप्टर DIOPTER। अरे पावर का ऐसा यूनिट डाइप्टर होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कल मैं आपका 10 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज करना, इससे पता चलेगा कि आपको समझ आएगा नहीं। तब तक दोस्तों यहीं पे क्लास एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।